Good morning, students. First, you tell me my voice is audible. Please raise your hand. Okay. So, this is Seema Khatri, and I take your social science, especially your two subjects, political science and geography. Before starting this chapter, we have to just talk about some basic concepts of this subject also, because we are going to start, and it is my first lecture, and you are attending the first lecture also. So my way of teaching, first of all, you have to understand before going to the direct topic to this level. Basically, we have to, whenever we start a topic, we have to understand the basic concept of the theme. Basic concept of the, we can say, the subject, we can say, the chapter theme also. So here, before starting this chapter, we will understand what is democracy, why democracy. Democracy is what? What do you mean by democracy? First of all, we have to understand. Democracy, you know, here I hope that in your earlier classes you read about democracy. This word comes from two Latin words, demos plus gratia. What do you mean by this? Demos means people and gratia means power. Means democracy is that form of government where the power resides in people. डेमोक्रेसी का अगर हम मतलब समझें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? ये दो लेटिन वर्ड से बना है, डिमोज और क्रेशियस. डिमोज का मतलब क्या हो गया? पीपल, और क्रेशियस मतलब पावर. मींस वो पावर, दैट पावर व्हिच रिसाइड्स इन पीपल. कौन सी पावर? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हिच पावर? द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, the power to elect the representative. This is democracy. And India, you know, that is called a very big democratic country. Why India adopted this form of government? There is also a history. This we will not discuss here, but we have to keep in mind the meaning of democracy first. Why democracy? What is democracy? Means democracy there the people have the right to choose the government, and the government runs the nation according to the constitution. It is democracy. In India, we see democracy and another word in another countries also, but through this chapter we will understand the difference between democratic and non-democratic nature. चलिए एक क्वेश्चन, अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करने से कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते तब आपको इजीली समझ में आएगा. हमने कहा डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पावर होती है, लोगों के अंदर पावर होती है अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की. और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या फीचर्स हो सकते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर देखो, एक होता है एब्सोल्यूट, जहां पर मोनार्क सिस्टम. We already heard about the forms of government. We also heard about the types of government. Like monarch system is there, dictatorship is there, constitutional monarchy is there, and democratic. तो सबका मतलब अगर हम समझें तो हमें समझ में आता है कि मोनार्क सिस्टम वो होता है जो एंसेस्ट्रल सिस्टम के फादर, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन जो है वो राजा बनता है. और रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा? वो किंग और उसके मेंबर्स. इसमें लोगों की कोई भी डिजायर नहीं होगी, लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा. दूसरी तरफ अगर हम डिक्टेटरशिप देखें, जो आप क्लास 9 में जर्मनी चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में, तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटर मीन्स एब्सोल्यूट पावर इज रिसाइड्स इन पर्टिकुलर पर्सन. एक पर्सन में सारी पावर. इन दैट a person is authorized to take decision for the people and as well as for the nation. In this, the dictator, whatever the, we can say, the suggestions
there is no suggestion. Whatever the things is declared by the dictator, it becomes law. कानून बन जाता है, उसमें कुछ नहीं देखा जाता कि लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है। जब आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे ना हिस्ट्री का, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा डिक्टेटरशिप क्या होती है और क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें जो कि इंग्लैंड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है यानी पार्लियामेंट भी है और मोनार्क सिस्टम, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी पार्लियामेंट है, उसके पास भी पावर है और किंग के पास भी, लेकिन किंग को कोई भी लॉ बनाने से पहले पार्लियामेंट से पूछना होगा, पार्लियामेंट से उसकी जो है मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर जो है उससे लेना होगा उसको अप्रूवल, और पार्लियामेंट को किंग से। समझ रहे बात को? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। एंड डेमोक्रेसी's absolute power resides in people. We have the right to choose our government. This is democracy. So through this we understand the meaning of democracy. Now, before going to the why question here, I just want to make you more understand about the concept of democracy. So giving some examples. In your first chapter of this political science, it is not in your syllabus. Democracy in contemporary world, but this chapter is totally associated with your this chapter. Democracy in contemporary क्या होता है दोस्तों? मॉडर्न। आज आपको पता है हर देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहता है। आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर कुछ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, देखो ये जो चैप्टर है ये आपको यही तो समझाना चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक कंट्री, that we are living in democratic country, that we enjoy all fundamental rights here. With some limitation, these rights are not absolute. This you will read in your further classes. But in non-democratic, there the limited rights are given to citizens only, essential only. And in your first chapter, some examples are there. Some countries' examples are there, like Chile. Chile is a very small country in South America. There was a president, Allende. Allende president हुआ और मतलब वहां पर वो प्रेसिडेंट कैसे बना? लोगों के उससे है ना, लोगों ने उसको प्रेसिडेंट बनाया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। Allende was very generous, बहुत जनरस था और बहुत लोगों की हेल्प करता था। पुअर लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट, ही स्टार्टेड वेरी रिफॉर्मेशन वर्क देयर। तो उससे क्या हुआ कि वहां की जो मिलिट्री थी या दूसरे जो पीपल ओपोनेंट जो लोग थे, दे डिड नॉट लाइक Allende ऑल दिस। तो वो Allende को जो है उनकी उसका ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, चिल्ड्रन की हेल्प करना है और इस तरह के जो जनरल वर्क थे, सोशल वर्क थे, उनको पसंद नहीं थे। दैट्स व्हाई पर्सन देयर वाज अ मिलिट्री ऑफिसर पिनोशेट, ही स्टार्टेड अ मिलिट्री कूप। उसने मिलिट्री कूप किया, मिलिट्री अटैक किया Allende पर और उसके डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को जो है प्रिजन कर दिया। उसके बाद जो है Allende को कहा कि आप अपनी प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दो, रिजाइन कर दो। उन्होंने मना कर दिया नहीं, तो उन्होंने उसके घर को जला दिया बुरी तरह से और Allende को जो है he was died। और पिनोशेट ने क्या किया? थ्रू अ रेफरेंडम he declared himself a resident of Chile। 17 years he ruled there। 17 साल उसने रूल किया और बहुत मनमाने तरीके से उसने वहां पर रूल किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड अदर कमीशन they found that referendum was totally corrupted। डर्टी ट्रिक्स लगा के वो वहां का प्रेसिडेंट बनाया। मिलिट्री ने पूरा का पूरा जो है कंट्रोल कर लिया चिले को और उन्हीं का रूल चल रहा था। कुछ सालों बाद वापस जो है जब 17 साल कहा जाए आफ्टर 17 years वहां पे रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में पिनोशेट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब लोग ना, मैंने इतने साल राज किया है तो लोग जो है मुझे ही वापस प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन
उन्होंने उस रेफरेंडम के अगेंस्ट में वोट किया और लास्ट में क्या हुआ, सिनेट को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर असेंबली इलेक्शन हुए, है ना, इलेक्शन हुए, लोगों ने अपनी सरकार खुद बनाई और वो चिले क्या हो गए, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या पता चला? कौन है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, what is your query? Ma'am, the voice is not audible and the video is also not clear. Voice is not audible. Video is not clear. Okay. Just you tell me on another student, my voice and video is clear. Please raise your hand. Is there any problem? Please raise your hand. कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? किसी वॉइस में, वीडियो में कोई दिक्कत है? All are raising hands. ठीक है, यू जस्ट टेल मी कि मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप हाथ ऊपर करें प्लीज, रेज योर हैंड। मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई आपको चिले की। उस चिले के अंदर हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट बनी थी पहले, जो अलांडे जो प्रेसिडेंट था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पास्ट। So, but this government, we can say democratic government, was overthrown by the military part, and the military officers, he became president of Chile and started to rule over there. So now we come to know the difference between democratic and non-democratic. Democratically, where people elected their government, and non-democratic here is that there the Pinochet, he became the president of Chile according to his will, not by the people. This is the difference. Here is one example also, Poland. Poland, this country was never under control of any military coup, never any dictatorship. There was a RPI, that is representative party was there, but this party was only one single party was there, and whenever opponent party was also there, but whenever the elections are contested, only RPI party won the election. So you tell me, this is a democratic nation? Another aspects are related to this, that the party, RPI party, who always won the election, used dirty tricks. What tricks it was used by them? Like he pressurized the people to cast their vote. Teachers also pressurized parents, and another problems were there. Sometime at the time of the casting vote, they also took away the polling booth, shifted the polling booth from one place to another. So all these types, they use the dirty tricks to win the election. So you just tell me, we can say that is it a very free and fair election? Is it the will of the people? So we deny it. It results that it seems that Poland is a democratic nation, but people have no proper choice to cast their vote. And another, in this, we see that there is no fair and free and fair election. We just discussed about the Chile story, that we come to the result of the story that the people who choose the rulers, they should have the right to take decision on behalf of the people, not by others. So, two conclusion of these stories. Why I just depicted this story in front of you? Because to understand the difference between democratic and non-democratic. Now,
If we discuss about, just whenever you open your textbook, there is some conversation between students and teachers. What is the conversation is there, that what can we say that a country is a democratic? What are its features? So in this chapter, we will discuss one by one all features with discussion and debate. It will not directly depict this, that this is the feature of a constitution, this is the feature of a constitution. With explanation, with debate, we will discuss. All these debates is discussion is there in student and teacher. Now there is a second question: why democracy? What is democracy? I hope this is you understood very well now. Now the second portion of this, why democracy. I have not started my chapter here. Today we are discussing only theme of this chapter. Why? क्यों? Democracy क्यों चाहिए? Just think about it. अगर आपके पेरेंट्स आपको ये कहें कि आप जो है सारा दिन पढ़े हैं केवल, from morning to evening, you have to give your all time to studies. You will not go out to play. You will not make your friends. You will, the parents do not allow to your leisure time. How you will react? How you will react? Think about it. You started shouting and everything, just doing things and all that. Just think about it. If a country is there, their citizens are not given the right. They are just imprisoned in a house or detained in a house, and we can say the part which is reside in government started to misuse that. So what type of country would be like that? There will be only anarchy. केवल वहां पर क्या होगी? अनार्की, मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी को सब्जुगेट करेगी, पुअर जो है, जो रिच होगा वो पुअर को सब्जुगेट करेगा, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, फाइट्स होंगे, कम्युनल रॉयट्स होंगे, यानी वहां पर क्या होगा? केवल कुछ ही गवर्नमेंट कितने लोगों से मिलकर बनती है? सम ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, नॉट ऑल द सिटीजन. आज इतने सारे जो हम इंडिया के सिटीजन जो है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्या वो सब हम गवर्नमेंट है क्या? नहीं है. In this way, if they started to misuse their power, what happened in the nation? क्या होगा? So because we could think about that the time before independence, then there was a British control in India. They colonized India. They started to subjugate Indians. No rights was given to Indians, and they were only tortured. Malpractices were there, and only we can say tyranny was there. In modern world, we do not want like this world, like this country. We want a democratic nation. Democracy we want, where the people have the power, where we have the right, where we have the right to limit the government's power. This we want. So that's why our Indian Constitution framers, they keep in mind in all these aspects, they frame the Constitution according to the goals and aspiration of people. लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं, वैसा ही सिस्टम इंडिया के अंदर आया. आज आपको पता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. I just want to ask a question. Please unmute one student. How many fundamental rights are given by our constitution? How many fundamental rights are given by? Yes, Anjali. Amni Sharma, please you tell me. कितने राइट्स दिए हैं? How many rights are given by the constitution? Yes, Amni. Yes, Amni.
How many rights? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आता है, बट यू आर नॉट स्पीकिंग एट दिस टाइम. ओके. There are 6 fundamental rights. Articles from 12 to 35. All fundamental rights, these are written in our Constitution. According to this, we enjoy these rights and we enjoy this democracy also. So I think now, through the comparison of different countries, we come to know what is the difference between democratic and non-democratic nations. And we also discover the answer of what is democracy, why democracy. I just gave you the example of your like कि पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए कहें पूरा दिन और बाहर जाने के लिए तो आपका क्या होगा. ऐसी अगर देश के अंदर सिटीजन्स को राइट्स नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट अपनी पार्ट को यूज करेगी तो देश. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस है ना, उसको भी हम वाई डेमोक्रेसी के साथ जोड़ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंक्शंस करता है जो डेमोक्रेटिकली वर्क करता है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. We want to fulfill our needs and aspirations. समझ लीजिए आप कोई आपकी डिमांड है तो आप किसको कहेंगे जाके. अगर आपकी डिमांड है कि हमारा जो है, अगर आप किसी और एम्प्लॉय एनीवेयर वांट दैट कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, उसके लिए आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे. सीधी सी बात है. ठीक है. ऐसे ही अगर आपको अपने देश से कुछ चाहिए कि हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल को क्या है और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, तो आप किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? अपनी गवर्नमेंट से करेंगे. अगर आप लोकल लेवल पे ले गए तो लोकल से करेंगे, है ना. तो कहने का मतलब है दिस इज द प्रोसेस. एंड इन दिस वे नाउ वी कम टू नो दैट what is democracy, why democracy. Today we discuss the theme of this chapter. Now I'll take some example of your textbook here. We now discover about the Poland and example of Poland and Chile. Now we will talk about the example of Pakistan. Pakistan, चलो मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है? अगर अभी नहीं मालूम तो आप मुझे कल की क्लास में बताएं. ठीक है. तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी पाकिस्तान की भी सुनाने जा रही हूँ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, उनका नाम सुना होगा आपने. उससे पहले जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उससे पहले नवाज शरीफ थे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और लोगों के दिल से वो प्राइम मिनिस्टर बने. समझे? Nawaz Sharif was elected by the people. At that time, we say that it was a democratic nation. But later, with the intervention of military law, General Pervez Musharraf, he intervened and he started a military coup. धीरे धीरे उन्होंने पूरे पाकिस्तान को क्या कर लिया, एक मार्शल लॉ लगा दिया. और नवाज शरीफ के ऊपर क्या एलिगेशन लगा? ट्रेजन का, कंट्री ट्रेजन का, देशद्रोह का. इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश को क्या किया है, उसके साथ द्रोह किया है. तो मिलिट्री जो है उसके ऊपर जैसे ही कंट्रोल हुआ तो क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन गए? जनरल परवेज मुशर्रफ. और नवाज शरीफ को क्या किया? हटा दिया वहां से. अब मुझे फिर एक बात बताइए, क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ या नॉन डेमोक्रेटिक? क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? आप बताएं. अभी क्या है ये सब? मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ क्योंकि हमारी एक बहुत ही कॉम्पिटिटर और यूं कहा जाए कि हमारा जो है देश है ये जो भारत से ही अलग होके गया है, तो बहुत मैटर करता है हमें जानना है इसके बारे में. प्लस हम अब आगे बात करते हैं कि एक आपकी जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है.
अगर एक सिंपल डिफिनेशन दें, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. It seems it is very simple definition, but you know the whole chapter is in this definition. What is the content given in your chapter? It is in this definition. इस डेफिनेशन में तीन चीजें हम डिस्कवर करेंगे: फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर, बाय द पीपल। अब बच्चे सबसे बड़ी बात है कि रूलर्स देख के समझ रहे होंगे कोई राजा या रानी या कोई डिक्टेटर होगा, नहीं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? डेमोक्रेसी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी को तीन चीजों से आपकी जो बुक में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट कैसी, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज दैट? इज देयर democratic government, non-democratic government, military rule is there? What type of government? Who are the people that related to the government? कौन है, क्या है? Form of government in India there is a parliamentary form of government. Rulers कौन है? Who are these people? India's leaders, India's members, Indian citizens. The citizens who elect the representative and they form the government, those are called rulers. उन्हें rulers कहा है. Here these rulers are not a ruler of any dynasty. Here rulers are elected representatives. What is the meaning here? Now the next, by the people, who are these people? We all, that who are the citizens of nation. According to the universal suffrage, universal adult franchise, the constitution has given us the right to vote. So, by the people मतलब लोगों ने अपने रूलर्स को चुना है उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब इसको कैसे बोलते? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स, जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमें ये बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी बनती कैसे है, ये भी हमें क्लियर समझना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने दो एग्जाम्पल लिए थे चिली और पोलैंड का और पाकिस्तान का भी लिया, तो हमारे सामने देखो सबसे बड़ी बात है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स होते हैं कि नहीं होते? उन फीचर्स को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इट विल बी इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली कुछ नहीं है, मैंने आपको कह दिया कि ये चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है, डेमोक्रेसी, ऐसे नहीं। हमें चीजों को डिबेट और डिस्कशन से समझना होगा। That's why I told you that there was a discussion between students and teacher. हमें क्लास में होता है, फॉर्मल क्लास होती तो शायद मैं आपसे ही डिस्कस करती और आपसे ही आंसर्स बाहर निकलवाती। अभी बस मुझे ही बोलना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू आवर फर्स्ट फीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, फिर आप बताना कि ये सही है या गलत है। देखो मैंने आपको चिली का एग्जाम्पल दिया, देखो बार बार ये आपके मैक्सिको का आएगा, म्यांमार का आएगा, नेपाल का आएगा। आप बताइए कि नेपाल के अंदर 8th क्लास में पढ़ा है, नेपाल में क्या शुरू से डेमोक्रेटिक कंट्री थी क्या? नेपाल नहीं थी। फिर क्या हुआ वहाँ? फिर वहाँ लोगों ने स्ट्रगल किया, ठीक है। फिर 2008 में डेमोक्रेटिक बना, फिर 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो नेपाल इस तरह से डेमोक्रेटिक नेशन बना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा? क्योंकि पहले मोनार्क सिस्टम था, फिर वहां पर लोगों का शासन आया। लोगों से शासन का मतलब ये नहीं कि लोग राज करने लगे, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आई वहां। तो आप मुझे बताइए कि जो डिसीजन, नेपाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैक्सिको उनका एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आप मुझे ये बताइए कि नेपाल में जो राजा बना है ना, वो राजा क्या लोगों ने बनाया? नहीं, वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, ये बन गए वहां के राजा, उन्होंने नेपाल को रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो और नॉन डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक। हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ के करना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर की बात करें, ठीक है, ओनली वन फीचर वी विल डिस्कस टुडे। इन अवर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। पहले तो इसका मतलब समझिए, फीचर क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जिन रूलर्स को हमने चुना है, फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसमें होनी चाहिए? उन रूलर्स में होनी चाहिए जिन लोगों ने चुना है। अब एक बात है, तो बहुत आराम से समझिए। मैंने आपको बताया चिले का एग्जाम्पल, जिसके अंदर पहले अलांदे था, फिर लोगों ने उसको चुना था, फिर जो भी वो स्टेप्स लेता था वो किसके बिहाफ पे लेता था? लोगों की। यानी फाइनल डिसीजन किसकी हो गई? अलांदे की हो गई। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट फीचर समझा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। तो कहने का मतलब अलांदे के पास पावर कैसे आई? लोगों ने उसको पावर, people they gave the power and started to take some measures for the welfare of the people, started to redistribute the land, educate the people, distributing milk also, another measures were also there. Now the Alande took the decision on the behalf of the people, that was democratic. But when Pinochet he became a president through a referendum, it was not a democratic feature of the democracy, because there was no will of people. Only with the help of the military army he became a president of Chile. I hope that you understand the difference between. अब हम ये कहते हैं कि इंडिया की अगर हम ये बात करें, हमने दूसरी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उस समय सारे डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे। इंडियंस का रोल नहीं था, अगर रोल था तो बहुत ही मिनिमल रोल था, और नॉमिनल जिसको कहते हैं। ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय, बट इट वाज नॉट टेकन बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, इट वाज ओनली विल ऑफ द लीडर्स, विल ऑफ द रूलर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। समझे चीज को, ये ब्रिटिश एम्पायर के जो रूलर्स थे उनकी विल पर हो रहा था, ये हमारे इंडियंस की विल पे नहीं हो रहा था। तो क्या हम इसे तब डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, this feature was included in Indian constitution, that the last decision of the society, of the country, always will be taken by the elected representative who govern the nation. तो हमें एक फीचर समझ में आया इसका कि जो लास्ट जो डिसीजन मेकिंग जो है वो किसकी होगी? इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज आल्सो गिवन अ स्पेसिफिक टेकिंग डिसीजन पार्ट। समझ रहे? एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत लोग एक साथ रह रहे हैं, डाइवर्सिटी इंडिया में है ही, आपको पता है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कल्चर एंड ऑल दैट। अब वो कह रहे हैं कि हम साथ में क्यों रहें, व्हाई वी शुड लिव टुगेदर। लेकिन आपको पता है कि समाज बना किससे? फैमिली से मिलकर बना है, और समाज से हम हटकर नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ टू फुलफिल आवर नीड्स। हमारी जरूरतों की जो फुलफिलमेंट होगा वो कैसे होगा? थ्रू द सोसाइटी। बट if there are some basic laws, if to govern the basic laws is there to govern the society, all people, because the members of the government, they will follow all the rules and basic laws. Automatically the members of the society, they started to follow, and they also realize if we will not follow, we would be punished, and if we follow, then we will lead a very comfortable life. तो हमें जो ये फीचर बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है देश के लिए, लोगों के लिए, किसके हाथ में होगी? जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हमने इलेक्ट किया है। क्लियर? अब हम सेकंड फीचर की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैंने एक पोलैंड का एग्जाम्पल बताया था, इसलिए मैंने दो स्टोरी पहले सुना दी। देखो, अगर हम देखें इसका मतलब क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी किसी पे कोई कंपल्शन ना हो, और बिल्कुल फेयर, यानी किसी में कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो वो इलेक्शन
वो किसका फीचर है? हमारी डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताएं, वैसे प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ आपसे, क्या ऐसा है क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100%? We try to, we can say, our government try to achieve this goal. Maximum we also achieve, but there are some, we can say, some limitations is also there, some weaknesses is also there. In Poland, I told you that पोलैंड में क्या था, एक ही पार्टी थी आरपीआई, वो ही हमेशा इलेक्शन जीतती थी, और जो ओपोनेंट पार्टी थी वो कभी नहीं जीतती थी। अब उसका कारण बताया कि ट्रिकी मेथड्स लेते थे, बहुत सारी डर्टी पॉलिटिक्स थी उनकी, जबरदस्ती लोगों से प्रेशराइज करके वोट ले लेते थे, जबरदस्ती उनसे क्या करते थे, साइन कराते थे, टीचर्स पेरेंट्स के साइन करा देते थे, इवन पोलिंग बूथ ही चेंज कर देते थे। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या? नहीं है ना। तो पोलैंड के एग्जाम्पल से हमने समझा कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, वी कैन से दिस इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके ऊपर किसी का प्रेशराइजेशन आता है कि आप इसको वोट दें? नहीं ना। हम वोट कैसे देते हैं? हम वोट अपनी इच्छा से देते हैं, जो पार्टी हमें पसंद आती है। और पार्टी कैसे पसंद आती है? उसके एजेंडे से। समझ रहे हैं कि वो क्या क्या करेगा, अगर पार्टी अगर सरकार बनाती है तो गवर्नमेंट क्या क्या करेगी लोगों के भले के लिए, तो हमें लगता है कि नहीं ये पार्टी अच्छी है, हमें इसके लिए वोट करना है। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके जब हम वोट करते हैं तो बिना किसी प्रेशराइजेशन के, तब हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, where the elections are contested, different political parties they contest, and there is a possibility to lose the election or by the ruling party, and opponent party can be become a major party or